لوگ مارے جائیں گے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بچائے. حقوق العباد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اتنا احتیاط تھا کہ ایک ذرہ برابر بھی حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانا چاہیے. چنانچہ آگے بھی میں نے بات کی تھی، اب بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ نہ کوئی چونو چرا کرتے تھے، نہ کوئی دلیل کرتے تھے، نہ اپنی ذات کی بڑائی کو آگے کرتے تھے، نہ کسی کی سفارش لیتے تھے، اور نہ ان کو کسی روگ سے اپنا روب ڈالتے تھے. چنانچہ بدر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کے مقابلے میں یہ پہلا مارکائی آپ بھی جانتے ہیں غزوہ تھا جس میں شامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے. جب آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا. آپ نے تیر اس لیے کہ قانون ہے کہ ایسی چیز سے جب صفائرہ کرتی ہے تو انسان نفس کیونکہ اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے تو اسٹریٹ ہو جاتا ہے. جیسے آج ہماری صفیں ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، لیکن روب نہیں ہے. کون ہے امام کہنے والا، کون ہے ہم کو کہنے والا؟ وہ تقوی کا معیار ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم اگر صفیں سیدھی نہیں کریں گے تو ہمارے دل اللہ ٹیڑھے کر دیں گے. آج ٹیڑھے دل ہمارے یہ ہیں. چنانچہ آپ نے صفیں سیدھی کر لی تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تیر کی نوک مجھے لگ گئی. آپ نے نہیں فرمایا کوئی جان بوجھ تو نہیں لگائے؟ نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں لگائے. میں تمہارا نبی ہوں، تمہاری جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں کہ بھائی تم گواہ ہو کہ نہیں ہو. کچھ نہیں، نہ ہیلا نہ حوالہ، نہ چونو چرا، کیونکہ نبی سے عالی شان معتبر شان نبی تھے کہ ایک نکتہ ہوگا تو ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. کبھی اللہ اس کو قبول کر لے گا کہ چبایا تھا تم نے، کیوں دلیلیں کی، اس کا بدلہ کیوں نہ دیا تو کیا ہو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو مقام کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے کہا یہ تیر لے لے. تیر اس صحابی نے تھام لیا. کہا کہ میں نے صرف تہمت باندھی تھی جس میں سطر چھپا ہوا تھا، اوپر کا بدن حصہ کھلا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ کا حصہ کھلا تھا، آپ تو کرتا پہنے ہوئے، یہ کیسے بدلے لے سکتے ہو؟ آپ نے کرتا اتار دیا. کوئی صحابی سفارش نہیں کرتا کہ بے ادب کیوں بن رہا، اس لیے جانتے تھے کہ حضور کی اس لائن میں سفارش کریں گے نا دے تو ڈانٹ پڑے گی. یہ نکتے سن لیجئے، آج وہ غائب ہو گئے. سب جو بڑے دعویٰ کریں بھیا، ہم تو کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کرتے. چنانچہ بیچ میں میرا یہ بات آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ ازواج مطہرات کو طلاق دے دی تھی، حالانکہ نہیں دی تھی، تو اس وقت مختصر سی بات کروں، آگے بڑھنا ہے مجھے، اجازت لے کے اندر تشریف لے کے. پہلی مرتبہ تو اجازت نہ ملی اجرے میں، دوسری مرتبہ ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بوریے پہ آرام کر رہے تھے تو ایک مشت جوے کونے میں پڑے ہوئے، بغیر داغ دیے ہوئے چمڑا، بس یہ کائنات تھی. آپ نے آنسو بہا کے کہا، یا حبیب اللہ، کیسر و کسرا کا تو یہ عیش و آرام کا ٹھاٹ اور آپ کا یہ حال. ہم ہوتے تو شکریہ آپ کا، آپ محبت بتاتے. نہیں، شریعت والے شریعت جانتے تھے، ہم خواہشات والے شریعت نہیں جانتے. چاہے کتنی کتابیں پڑھے ہوں، جب اس کے اندر فنا نہیں ہوتا انسان، اللہ اپنے فضل و کرم سے نہیں کھولتا، تو آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا کہ تم مہربانی، بلکہ کہا، اے عمر، لا عیش الا عیش الاخرہ، ہمارا یہ دنیا میں عیش نہیں، ہمارا عیش آخرت میں. تو سمجھ گئے عمر اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلکہ شکر اور دعا کے بجائے مجھ پہ ڈانٹ پڑی کہ تم دھوکے میں ہے. اگر آخرت کے دھوکے میں نہ ہوتا تو میری اس بے بسی پہ تو اس طرح سے ہمدردی نہ بتاتا. چنانچہ کیا کہا، یا حضرت، یا حبیب اللہ، میرے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے جو یہ میں نے بولے ہیں. جی ہاں، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس سے تو سینکڑوں کوس دور ہو گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار دیا، اور کرتا اتار دیا تو اس نے تیر کو تھاما. صحابہ نے دیکھا خدا کا بندہ چھپا دے گا، کیا کرے، لیکن کیسے بولے، ہمدردی تھی، کیسے بولے. یہاں انصاف کا تقاضا، حقوق العباد کا تقاضا.
बस वो तीर थामे हुआ था, जैसे सरे अक़दस ज़ाहिर हुआ, नंगा हुआ कहना तो बेअदबी है मेरे नज़दीक, नहीं, ज़ाहिर हुआ, दौड़ कर चूम लिया। साहबा को पता चला कि इसने तरतीब की थी जिसमें अतहर को चूमने की। लेकिन हमें ये सोचना है इस वक्त, लेकिन आज इंसान समझदार से समझदारी का दावा रखने के बाद दिलों को फाड़ता है और जानता है, लेकिन अपनी अना और इन खाकों को रखकर माफी नहीं मांगता, तो उनका क़यामत के दिन क्या हाल होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, उस पर एक तौहीद का यकीन बिठाया था कि डरने के लायक अल्लाह है और ये किसी के पासदार नहीं है, अल्लाह किसी के फेवर में नहीं जाते, इंसाफ में अल्लाह किसी के भी नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया। रिज़्क देने में किसी के नहीं है कि एक नबी को कोई सताता है तो भी उसको रिज़्क देंगे, इसलिए कि वादा दे चुके। अगर कोई नबी कहे कि इसको रिज़्क ना दो, कि मैं वादा दे चुका हूँ, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, ऐ मेरे हबीब, काफिर आपको सताते, मैं अभी फैसला कर दूं, लेकिन मैंने वादा कर रखा है, मैं अपनी आदत को नहीं बदलता। हर एक को ढील दे रखी है, देखा आपने, प्यार किया मोहब्बत से, लेकिन मैंने वादा क्या रखा, इसलिए अल्लाह के हुक्म को अटल नहीं समझता और उसके अंदर जहाँ डरना चाहिए वहाँ पर रहमत डाल देता है, और जहाँ रहमत डालनी चाहिए वहाँ मायूस हो जाता है, वो पूरे ज़ाब्ते को बिगाड़ कर रख देता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि नमरूद ने आग तैयार की, कितनी बड़ी आजमाइश, नहीं, ये बड़ी आजमाइश नहीं थी, माफ कीजिए। क्यों? आग में जलना बड़ी आजमाइश नहीं, ईमान को खो देना बड़ी आजमाइश। आजमाइश तो बाद में अल्लाह ने की। नमरूद ने आग तैयार की, सुनो, तो आग में जल जाना एक मुस्लिम के लिए ईमान के साथ सआदत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान को न छोड़ना, चाहे तुझे सूली पे चढ़ा दिया, चाहे तुझे जला कर खाक कर दिया जाए। दिया एक काफिर आ जाए, छोड़ दे ईमान, चाहे तुझे कत्ल करा दिया, चाहे कि जला दूंगा कि जला दे, इसलिए कि जान से ईमान मुकद्दम है। जान फना होने वाली है, ईमान बाकी रहने वाला है। तो बाकी रहने वाले की हैसियत है, फना की हैसियत नहीं है इतनी जितनी कि होनी चाहिए। चुनांचे जब वो आला तैयार होगा, उस वक्त फरिश्तों में खलबली मच गई कि अल्लाह, तेरे खलील को जलाया जाता है। ये आजमाइश थी, तेरे खलील को जलाया जाता है। अगर तू हुक्म फरमाए तो हम इसकी खिदमत करें और इनको बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ने हुक्म न दिया, क्या कहा, मैं इजाज़त देता हूँ, जाओ कोशिश करो, इजाज़त। इसलिए कि सर्फ नौ में इज़्न और अम्र का बड़ा फ़र्क है। अम्र फ़र्ज़ बन जाता है, जैसे फंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जुमे के बाद रिज़्क की तलाश करो, ये इज़्न है, अम्र नहीं है। चाहे कोई करे न करे, इसकी तशरीह में उलमा ने बहुत सी कहा है, कोई अयादत के लिए जाए, कोई किसी मिस्किन की खिदमत के लिए जाए। बहर कैफ फरिश्ते आए और सलाम करके कहा कि हम अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे ना, कहा हुक्म है मुझे बचाने का, कि नहीं हुक्म तो नहीं है, इजाज़त है। सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बड़ी कसौटी है। इन्नी वज्जहत वज़िल लज़ी फ़तर अस्समावाति वल अर्ज़ कहा, मैंने फरिश्तों को माना तो है, लेकिन इसकी मदद का तो तलबगार नहीं होगा। मैंने इसको मदद के एतबार से नहीं माना, मैंने इसको परवरिश करने के एतबार से नहीं माना, हाफिज के एतबार से नहीं माना, मैंने मलाइका के एतबार से माना कि अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है। कि फिर कि इज़्न हमने इजाज़त चाहिए थी, तो कहा कि मुझे अल्लाह काफ़ी है। अगर फरिश्तों की मदद ले लेते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हार जाते। यही कसौटी थी, सबसे बड़ी कसौटी यही थी, सबसे बड़ी कसौटी यही थी। चुनाचे मलाइका की नफ़ी कर दी मदद लेने में कि अल्लाह काफ़ी है, मैं यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। माशाअल्लाह, हम पे तो थोड़ी सी भीड़ पड़ जाए ना,
थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, फौरन मखलूक की तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसलिए कि हमने जिस मिल्लत पे हैं उस तौहीद को नहीं समझा और उस तौहीद की निस्बत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तासुरन नहीं अपनाया और न इसको निभा सकते हैं हम अल्लाह को। जी हाँ, अल्लाह को यकीन ही निभा सकता है। जिस दर्जे का यकीन होगा उस दर्जे अल्लाह को निभाएंगे, और जितना कमज़ोर होगा इतना अल्लाह को नहीं निभा सकेंगे और इसका हिस्सा मखलूक की तरफ जाएगा, खलामाहल है, मखलूक की तरफ जाएगा। चुनांचे नमरूद ने कहा आग में डाल दो। नमरूद ने कहा आग में डाल। फरिश्ते देखते रहे, तकते रहे, और ये नहीं कि उठा के डालना और फिर अल्लाह ने कहा नहीं, आग में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए गौर से। तो उस वक्त अल्लाह पाक को हया आई कि अब मैं फरिश्तों के साथ मदद करूं, ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि इसने नफी की है। अब मुझ पर लाजिम है कि बराह रास्त में मदद करूं। यह हमातन अल्लाह का हो जाने पर हमातन अल्लाह इस्तेमाल होते हैं। ये सुन लीजिए, हमारे साथ कभी हमातन अल्लाह इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए कि हम मखलूक वाले हैं, खालिक वाले नहीं हैं। हमातन या नारो खूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम। आग को क्या कहा? या नारो खूनी, ए नार हो जा बरदों सलामती, बरदों सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा, बुझ जा। यूं नहीं कहा। कमाल है, बारिश नहीं बरसाया। अगर बारिश बरसाते तो नहीं, बारिश को हक नहीं पहुंचता था कि इस पे बरसे, इस पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसे। बारिश नहीं बरसाया। न फरिश्तों को कहो कि तुम मदद, इसलिए कि इसने सबकी नफी की थी, मलाइका की नफी, चांद की नफी, आसमान की नफी, बारिश की नफी, सब चीज की नफी की थी। बराज़ात अपनी जात में से अल्लाह ने हुक्म निकाला, या नारो खूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। वो आग सलामती वाली हो गई। बरदम अगर ठंडी बढ़ जाती, बर्द ठंडी को कहते तो भी मुश्किल था, सलामती वाली आग ठंडी हो गई। और कब हो गई? फौरन हुक्म पहुंचते ही, 5 मिनट भी नहीं लगी। हाँ, कि अल्लाह को कोई निज़ाम बनाना पड़ा होगा कि एयर कंडीशन लगावे फूक फूक के तो आग ठंडी। समझ में ना आवे कि समझ में ना आवे, वही तो अल्लाह है कि इतनी बड़ी आग के ऊपर से परिंदा गुजरता तो जल के भून कर गिर जाता था। इतनी जबरदस्त आग, खुदा की पनाह। लेकिन अभी हुक्म पहुंचा नहीं और वो पहुंचते ही आग ठंडी वाली हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो लुत्फ मुझे इसमें आया कहीं ना आया। कमाल। लेकिन कब? ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत दे दी, बस खत्म। बस नहीं, बल्कि इन चंद कलमात के अंदर आजमा के बैठाया। इसके बाद जब ये सारे मसलों के अंदर पास हो गए, सुनो, तो बीवी की आजमाइश में, जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा बात की, बच्चे की आजमाइश में, छोड़ देने ज़िबा वगैरह में, और अपनी आजमाइश में, तो फिर आप शाम की तरफ चले गए और अल्लाह ने फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह पाक ने फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। अब बहुत सी बकरियाँ दी और अल्लाह पाक ने खाने पीने के सामान, क्योंकि कसौटी पूरी हो गई। उस पर फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, तेरे इब्राहिम को अब हम परखना चाहते हैं। कि कैसे? कि खाने पीने में तो सब माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करे, दुख में भी सब अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन खाने पीने और ऐश पे राहत में कैसे करे? कि जाओ। फरिश्ता आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, पीठ के पीछे का अल्लाह, आपने मुंह मोड़ कर दिखा कर दोबारा अल्लाह कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, इतनी बकरियां देनी पड़ेगी। कहा इसकी इतनी बकरियां दे दो। उसने अल्लाह कहा और कहे सारी बकरियां खत्म, सारी जायदाद खत्म। क्या अब क्या अल्लाह कहे? मैं फरिश्ता कहता, जब तुम्हारे पास कुछ न रहा, कि मैं तेरा दास गुलाम, तू अल्लाह अल्लाह करते रहियो, मैं तेरे साथ चलता रहूं। फरिश्ते हैरान हो। अल्लाह ने कहा देख लिया, परख लिया कि वाकई अल्लाह राहत में भी तेरा है,
مصیبت میں بھی تیرا ہے، آفت میں بھی تیرا ہے، آزمائش میں بھی تیرا ہے،